सकता। ये सदन की अवमानना है। I will not tolerate anyone intervening. नहीं किया जा सकता। He is saying it. He says he will bring a breach of penal notice also. Take your seat. No, you don't have to make it a wrestling match. Or no, please, no. Go ahead. And you can take recourse to. आपने एक कहावत कही थी कि पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा बराबर। अध्यक्ष जी, सभापति जी, हाँ, लेकिन हम इन पढ़े लिखों को क्या कहें जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जानबूझकर असत्य बोलता है, सदन को गुमराह करने का कोशिश करता है। इसका मतलब ये सदन का उपयोग इसलिए करना चाहता है कि वो उसको गुमराह। आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए। सर, इस समय आप सभापति की सहमति से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर भीम सिंह, whose birthday is tomorrow the 30th of November, and Shri Sanjay Kumar Jha, whose birthday is on Sunday the 1st of December. Dr. Bhim Singh is serving his first term in this August House since April 2024, representing the state of Bihar. He has served 2 consecutive terms in the Bihar Legislative Council 2006 to 2015 and held key ministerial portfolios including rural works, Panchayati Raj, industries and road construction. He had served as a mechanical engineering lecturer in Government Polytechnic, Bihar. He is also a graduate in law and a doctorate in labor studies. He has authored several books, one of them being Mahan Kram Yogi, Jannayak Karpuri Thakur, honoring the life and legacy of Jannayak Bharat Ratan Karpuri Thakur ji, and this has earned a special place in literary circles. Honorable members, I vividly remember in April this year, Dr. Bhim Singh took oath as a member of Rajya Sabha in Sanskrit. Married to Srimati Malti Singh, and the couple is blessed with daughters Neha and Nisha. Honorable members, on my own and your behalf, I wish him happy, long and healthy life and extend greetings to his family members. Shri Sanjay Kumar Jha is serving his first term in this August House since April 2024, representing the state of Bihar. He is currently the floor leader of Janata Dal United and serves as chairperson of the Committee on Transport, Tourism and Culture. He is a postgraduate in medieval history from the prestigious Jawaharlal Nehru University. Shri Sanjay Jha served 2 terms in Bihar Legislative Council 2006 to 2012 and 2019 to 2024 and held key ministerial roles in water resources, information and public relations. During his tenure, he oversaw transformative projects like the Ganga Water Supply Scheme and the construction of India's largest rubber dam at Vishnupad Temple, ensuring year-round water availability in the Falgu River. A champion of Mithila's cultural heritage, and honorable members, I noticed joy on his face when the Constitution was released in Maithili language on 26th November. Married to Shrimati Enakshi Jha, the couple is blessed with son Adi and daughters Satya and Adya. Shri Leher Singh Shiroya, you are next. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी आपका।
मैं बजट की बात करने के लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था। काफी बातें कही जा चुकी है, लेकिन एक बात और मुझे विशेष आपत्ति है। हाँ, इधर देख, इधर देख। हमारे एक सदस्य जो भी सरासर असत्य बोल करके गए हैं, सदन को गुमराह करके गए हैं, उसके लिए मैं ऋषा से अधिकार नोटिस देना चाहता हूं। और अब वो सदन हमारे लोगों के कहने के बावजूद भी चले गए। उन्होंने ये कहा है कि मनरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में हमने 86,000 करोड़ रुपया प्रावधान रखा है, 86,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। उन्होंने बिल्कुल असत्य कहा है। और अगर सदन को इसी से तरह से गुमराह करना है तो इन लोगों का बोलने का मतलब क्या है? तो इसलिए मैं चाहता हूं इनको बुलाया जाए और उन पर विशेषाधिकार का इनको नोटिस दिया जाए। और तब तक उनको सदन में दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाए। सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता। ये सदन की अवमानना है। I will not tolerate anyone intervening. नहीं किया जा सकता। He is saying it. He says he will bring a breach of privilege notice also. Take your seat. No, you don't have to make it a wrestling match. No, please, no. Go ahead. And you can take recourse to. आपने एक कहावत कही थी कि पढ़ा लिखा मतलब अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा बराबर। अध्यक्ष जी, सभापति जी, हाँ, लेकिन हम इन पढ़े लिखों को क्या कहें जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जानबूझकर असत्य बोलता है, सदन को गुमराह करने का कोशिश करता है। इसका मतलब ये सदन का उपयोग इसलिए करना चाहता है कि वो इसको गुमराह कर सके। लुक एट मी, लुक एट मी। तो ये मेरा है। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने एक बात सुन लीजिए। इट इज माई प्रिविलेज टू लुक एट एवरीवन, बट स्पीकर हैज टू लुक एट मी ओनली। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मेरा सौभाग्य है कि आप विराजमान हैं और आप मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं पुनः एक बार आपका आभार मानता हूं, क्योंकि मैं आवेश में आ गया था कि उस सदन को गुमराह करने की जो बात थी वो मुझे बहुत चुभी थी। मैं इस बजट का क्योंकि मैं कर्मचारी भी रहा हूं, छोटा दुकानदार भी रहा हूं और मध्यम श्रेणी का व्यापारी भी रहा हूं, तो इस बजट को मैंने अच्छे से पढ़ा है और मैंने इस बजट को जिया है। इस बजट की प्रावधानों को मैं समझता हूं। इसके लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था। मैं बताऊं कि मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, इसमें महिलाओं के लिए कितना उसमें कहा गया है, लेकिन मैं इतना समय अब आप मुझे देंगे नहीं। और मुझे दुख इस बात का होता है कभी कभी, हमारे आदरणीय खड़गे जी आज भी नहीं है, उन्होंने भी शायद बजट नहीं पढ़ा और इन्होंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उनकी बातों का खंडन तो राजीव शुक्ला जी और अखिलेश कुमार सिंह जी कर चुके हैं। और मुझे जो ये कांग्रेस जो है ये ग्रांड ओल्ड पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब ये ब्रांड न्यू पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, क्योंकि अब ये मार्गदर्शन जिनसे ले रहे हैं, भगवान इनका भला करे, अब ये कौन कौन इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं और कौन कौन इनको वेल में खींच के ला रहे हैं, ये ग्रांड ओल्ड पार्टी का ये चरित्र नहीं हो सकता। जबकि चिदम्बरम जी, माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी जी, माननीय सदस्य, आप अपने बजट भाषण पर फोकस कीजिए। सर, ये मैं बजट की बात पर आता हूं। आदरणीय खड़गे जी ने ये कहा था कि कि दो ही राज्यों को ये दिया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया है, दो राज्य के नाम, और बाकी उन्होंने कुछ और नाम गिनाए, इनको कुछ नहीं मिला, उनको नहीं कुछ मिला। शायद वो भूगोल का पाठ रट रहे थे कि कहां कहां वो सत्ता खो चुके हैं, तो इसलिए उनको वो सदस्य वो याद आ रहे थे, वो नाम याद आ रहे थे, उनके जहन में वो नाम छाए हुए थे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि अब जब उन्होंने ये कहा तो मैं कर्नाटक को लेकर के कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में हमारी सरकार ने क्या किया है। राजस्थान तो बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। नहीं, रणदीप सुरजेवाला जी भी राजस्थान गए हुए हैं, हरियाणा से।
प्रमोद तिवारी जी भी राजस्थान गए हुए हैं। ये पूरा देश एक है। कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक की बात है ये, और मैं समझता हूं कि आदरणीय खड़गे जी कर्नाटक की बातों को समझ जाएंगे जल्दी, इसलिए मैं कर्नाटक का उदाहरण दे रहा हूं। कर्नाटक में जो आवंटन हुआ था स्टेज वाइज आउटले ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट, एक उदाहरण देना चाहूंगा। रेलवे के बारे में बातें कही गई। कर्नाटक में 2009 से 14 तक में ईयरली एवरेज बेसिस पे 835 करोड़ रुपए 835 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए थे 2009 से 14 में एवरेज ईयर में, और हमारी सरकार ने किए हैं एवरेज ईयर में 2023-24 में क्या एक साल में 7,561 करोड़। आप देखिए 9 गुना 9 टाइम्स, और इस बजट में और भी बढ़ा करके 7,559 करोड़ रखा है रेलवे का बजट में। क्या ये कर्नाटक को नहीं गया है आदरणीय सभापति जी? और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टैक्स का जो सिस्टम जो है आप ज्यादा समझते होंगे, मेरे सदन के साथी समझ जाएंगे। टैक्स रिवोल्यूशन का जो है 2004 से 14 तक 10 वर्षों में 81,000 करोड़ दिया गया था। 81,000 करोड़ आप सब समझ लें, और हमारे विपक्ष में समझ लें। और 2014 से 24 में 10 वर्षों में 2,95,000 करोड़ 2,95,000 करोड़ रुपीस दिया गया। और दूसरी होती है ग्रांट इन एड फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें ज्यादा मैं समझता नहीं हूं, लेकिन आंकड़े देख रहा हूं मैं। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 60,779 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था 10 वर्षों में, और हमने 10 वर्षों में क्या 2,36,000 करोड़। कंपेयर देखिए आप, कहाँ 60,000 कहाँ 2,36,000 करोड़। ये कर्नाटक के बारे में बता रहा हूं, और महाराष्ट्र के बारे में तो बाकी लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और ये जो रिलीज अंडर स्पेशल असिस्टेंट सर, रिलीज अंडर स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कर्नाटका, वो 2020-21 में 305 करोड़ था, 2021-22 में 452 करोड़ हुआ, और 2022 में 3,399 करोड़ 3,399 करोड़, और 2023-24 में 3,879 करोड़, और 2024-25 में 2,006 करोड़, और ये उसमें कुल मिला के हमने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसे मेरे पास में आंकड़े बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत आपका समय लूंगा, तो मैं आंकड़े उनको देना चाहूंगा। जयराम रमेश जी जो मेरे साथी राज्यसभा में आए हैं, ताकि वो उनको देखें, ये उनका भ्रम दूर करे खड़गे जी का। लेकिन एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अभी है मैं मेरे समय की सीमा में रहना चाहूंगा सभापति जी, इसलिए मैं ज्यादा इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं आंकड़ों में। कर्नाटक के मेरे पास में कम से कम 25 और आंकड़े हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा जो मेरे बहुत दर्द होता है, मेरे दिल को बहुत दुख होता है, और मेरे आदिवासी भाई जो बैठे हैं वो विशेष रूप से इस बात को लेकर के दुखी होंगे कि आदिवासियों के लिए हमारी सरकार ने 1,24,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है पूरे देश में। गए वर्ष ये 1,19,000 था, करोड़ का आंकड़ा था, 1,19,796। अब ये 1,24,909 ये एसटी समुदाय के लिए, मैं एससी की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, जब बजट बनता है, बजट में हम चर्चा करते हैं, तो ये हमारा केंद्र का ये दायित्व हो जाता है कि ये जो एसटी और एससी के लिए जो दिया गया पैसा, वो संबंधित राज्य उसका सदुपयोग करे। अब आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्टेट का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक और किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन जो डेवलपमेंट कमिश्नर बना था वाल्मीकि के नाम पे कर्नाटक में, और उसमें 188 करोड़ रुपए बैंक से ऐसे ही उठा लिए गए। ऐसी धोखाधड़ी आजाद देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। जीमी नागर वाला केस में भी नहीं हुआ, वो कुछ लाख रुपए लेके गया था। बैंकों से पैसा उठा लिया गया 188 करोड़ रुपए, और वो उजागर कैसे हुआ? वो जो अकाउंट्स ऑफिसर जो था, जिसके हाथ से काम कराया गया था, और उसको लगा कि मैंने बहुत गंभीर अपराध कर लिया है, तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और उसने 6 पेज का नोट लिख के गया। उसका मंत्री उसमें जेल में है, और उसमें
बैंक वाले जेल में, अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि ये पैसा उसमें 19,000 करोड़ का तो शराब ली गई, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अथेंटिकेट करूंगा अध्यक्ष सभापति जी, और मैं जो उन गाड़ियों के नाम भी याद नहीं आते, मैं तो गांव का आदमी हूं, लंबोर्गिनी क्या बोलते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, वो लंबोर्गिनी या ऐसा कुछ बोलते होंगे, हम तो लंबोर्गिनी कहेंगे, तो 5-5 करोड़ की गाड़ियां उस पैसे से खरीदी गई, और 15 किलो सोना खरीदा गया सभापति जी, उसमें 10 किलो सोना परसों ईडी ने सीज किया है। तो जब ये हम एसटी के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, और खड़गे जी जो दलित नेता हैं, मैं तो उनको सबका नेता मानता हूं, कर्नाटक में उनके बड़ा योगदान है। परसों आप हमारे विमला जी के लिए कह रहे थे कि माता जी, तो माता जी कहा तो छोटी उम्र में, फिर भी हमारे कर्नाटक में कहते हैं छोटी बहन को भी अक्का, बड़ी बहन कहते हैं, तो कोई उम्र ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अपनी माता के लिए कहा कि मैं उनकी वजह से हूं, तो मैं उनको, खड़गे जी को याद दिलाना चाहता हूं कि माता जी तो आई है 99 में पॉलिटिक्स में, और उसके पहले तक वो 5-6 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके थे, 6-7 बार एमएलए बन चुके थे। तो वो ये ठीक है, भी उनकी इच्छा है, वो किसी को भी स्टेज दे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये यहाँ पर रोज ज्ञान बांटते हैं, रोज बातें करते हैं, हर बार आए रोज मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अपनी राज्य में सही स्थिति पैदा करें, और जब ये मोरल हाई ग्राउंड्स में लेते हैं तो क्या उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मेरा ये सीधा आरोप है सभापति जी कि ये पैसा अगर एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बिना किसी अवरोध के अगर काम करेगी, तो ये पैसा दिल्ली के चुनाव में खर्च में आया हुआ पैसा है, साबित हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। एक सेकंड, the word is deleted. मैं इस पर कायम हूं। deleted. अगर मैं ये बात मेरी असत्य होती है तो मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा। ये पैसा अगर जांच करेंगे, ये पैसा दिल्ली आया है, किन किन माध्यम से आया है, आंध्रा के और तेलंगाना के बैंकों में पैसा गया है, किन किन खातों में पैसा गया है, अगर इसकी जांच होनी चाहिए। और उस जांच के लिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारे वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और फिर जांच कराएं और जांच एजेंसी के साथ में सहयोग करें। Please conclude now. हाँ नहीं सर, 2 मिनट सर प्लीज सर, मैं बहुत सीमित रख रहा हूं, मैं अपना बहुत सीमित रख रहा हूं, लेकिन 2 मिनट मैं, हाँ, और ये गारंटियों में जो पैसा एससी के समुदाय का पैसा, एसटी समुदाय का पैसा, वो भी गारंटी में डाइवर्ट हो रहा है। और एससी पर हमने जो 1,65,00,000 रुपए हम बजट में तो अलॉट करते हैं, लेकिन एससी का पैसा साब्रांत महिलाओं को फ्री बस राइड के लिए उपयोग किया जा रहा है, अलग अलग गारंटी में उपयोग किया जा रहा है, बिना किसी बीपीएल लाइन के। तो ये हमारा भी ये देखना सरकार का फर्ज बनता है। मैं एक लास्ट पॉइंट रखूंगा कि आरटीआई के लिए मैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस मेरे साथी रहे और मैं यहाँ आने में उनका भी कहीं कहीं वाया मीडिया आशीर्वाद रहा है, तो कांग्रेस को एक बात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आरटीआई का जो है 2005 में मैं सोनिया गांधी जी को श्रेय दूंगा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने आरटीआई एक्ट लागू की। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर है, वही एक्सपर्ट है, वो 5-6 लोग हैं, वही बात बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है,